Hello students, I am Monica Gupta from M International School, Nayagaon, Kota. In our previous video or part 1, we have studied about safety rules at school, safety rules at home, safety rules while playing. So today we'll start our part 2 of keeping safe. Now safety rules on the road. When you're walking on the road, we should follow some safety rules. While on the road, always walk on the footpath. If there is no footpath, walk on the extreme left of the road. देखो जब भी आप रोड पे चलते हैं, while on the road walk करते हैं, तो always walk on the footpath. footpath पे ही walk करना चाहिए. If there is no footpath, अगर रोड पे फुटपाथ नहीं है तो always walk on the extreme left of the road. रोड के बहुत कॉर्नर में, बिल्कुल कॉर्नर लेफ्ट में हमें वॉक करना चाहिए. Use the pedestrian or zebra crossing and underpass और एन ओवरहेड ब्रिज फॉर क्रॉसिंग द रोड. रोड क्रॉस करने के लिए क्या यूज करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग और एन ओवरहेड ब्रिज और अंडरपास ब्रिज. अंडरपास ब्रिज होता है जो वन रोड से सेकेंड अदर रोड पे क्रॉस कवर करता है. ऑलवेज चेक दैट नो व्हीकल इज कमिंग फ्रॉम आइदर साइड बिफोर क्रॉसिंग द रोड. किसी भी साइड से व्हीकल नहीं आ रही हो, नॉट फ्रॉम द राइट साइड, नॉट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, उसके बाद ही आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए. Do not ride your cycle on busy roads. When you are riding a bicycle, use your hands to signal while turning. Look, do not ride your cycle on busy roads. Busy roads जहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हो, जो रोड बहुत बिजी होता है, काफ़ी व्हीकल्स वहाँ मूव करते हैं, वहाँ पे साइकिलिंग नहीं करनी चाहिए. If you are riding when you are riding a bicycle, अगर आप बाइसिकल राइड कर रहे हैं तो use your hands to signal while turning. जब आप टर्न करते हैं रोड पे तो अपने हैंड्स को यूज़ करना चाहिए एज अ सिग्नल. Ring the bell to clear the traffic ahead of your vehicle. Ring the bell, बाइसिकल के बेल को रिंग करना चाहिए to move ahead to clear the traffic ahead of your vehicle. Always follow the traffic signal and cross the road only when the signal is green. हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए. Follow the traffic lights, रेड ग्रीन येलो एंड क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द सिग्नल इज राइट. जब सिग्नल ग्रीन होता है, अगर सिग्नल ग्रीन है तभी हमें क्या करना चाहिए? रोड क्रॉस करनी चाहिए. Look right, then left and again right before crossing the road. Look, as I told you, always check that no vehicle is coming from either side before crossing the road. आप रोड क्रॉस करते हैं तो देखना चाहिए कि कहीं से भी व्हीकल नहीं आ रही है. So first you have to look right, पहले राइट में देखें, then left, then again right, then cross the road. Always obey the traffic policeman. ट्रैफिक पुलिसमैन को ओबे करना चाहिए. अवॉइड क्रॉसिंग बिटवीन पार्क्ड कार्स के बीच में से क्रॉस करना अवॉइड करना चाहिए. Safety rules in public places. If you are in a public place, you should follow some safety rules to keep yourself away from accidents. You might often go to the market or to a movie theater or some other public places with your parents. Of course, हम ऐसी जगह जाते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ. We should follow certain safety rules there to stay safe. First, do not run around unnecessarily. You may get separated from your parents. देखो, हम पेरेंट्स के साथ मार्केट जाते हैं, मूवी थिएटर जाते हैं, मॉल जाते हैं या एनी अदर पब्लिक प्लेसेस जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? Do not run around unnecessarily. Unnecessarily इधर उधर नहीं भागना चाहिए. You may get separated from your parents. आप अपने पेरेंट्स से अलग हो सकते हैं. If there are staircases, walk on the left side of to let other people pass. If there are staircases, सीढ़ियाँ हैं तो क्या करना चाहिए? Walk on the left side. Left side में walk करना चाहिए. Left side से ही run up and down करना चाहिए. Why? To let other people pass, ताकि और लोग भी जा सकें. Do not talk to strangers in public places. This is the most important point. Do not talk to strangers. Do not take anything from strangers. Do not accept any kind of eatables from someone you don't know. What is strangers? Strangers वही होता है someone you do not know, जिसे आप नहीं जानते. So do not talk to them. Do not accept any kind of eatable. कुछ भी खाने का नहीं लेना चाहिए उनसे. Do not share your personal details such as address or phone number with strangers. Strangers से अपनी personal details like address, phone number share नहीं करना चाहिए. Do not touch any unidentified objects lying in public places. Public places में कोई भी unidentified objects होता है जो आपका नहीं है, जो भी ऑब्जेक्ट आपका नहीं है उसे टच नहीं करना चाहिए. Okay, safety rules on the beach. If you are going to beach, you should do some safety rules. Do not swim in the water alone. As I told you, never swim in the water alone in the swimming pool as well. So do not swim in the water alone on the beach. Do not go too far into the water. पानी में ज़्यादा आगे तक नहीं जाना चाहिए. Be careful while walking on the beach. Beach पे walk करते टाइम careful रहना चाहिए. Look out for beach toys such as shovels, small buckets and spades lying around. देखो beach toys क्या होते हैं? Like shovels, small buckets and spades. Play with that toys. Safety rules while playing with dogs. Dogs, if you are playing with dog, you should follow some safety rules. We should be careful around animals. If we disturb or tease animals, they can bite and hurt us. हमें क्या करना चाहिए? हमें careful रहना चाहिए. If you have animals around us, आप उसे tease करेंगे, disturb करेंगे तो he or she animal can bite and hurt you. We should follow precautions when we are around animals. अगर आप animals के आसपास है तो हमें क्या precautions follow करने चाहिए?
डू नॉट प्ले विथ स्ट्रे डॉग्स एज दे कैन बाइट यू, स्ट्रे डॉग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए एज इट कैन बाइट यू, दे कैन बाइट यू, क्या कर सकते हैं, आपको बाइट कर सकते हैं, आपको हर्ट हो सकता है। डू नॉट रन अवे फ्रॉम अ डॉग इफ इट इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स यू, स्टे काम एंड कॉल फॉर एन अडल्ट। इफ़ यू आर वॉकिंग समवेयर, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप देखते हैं कि आपके पीछे डॉग आ रहा है, तो डू नॉट रन अवे फ्रॉम अ डॉग इफ इट इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स यू, आपके पीछे ही आ रहा है तो वॉक हमें रन नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्टे काम रहना चाहिए, किसी अडल्ट किसी बड़े को बुलाना चाहिए। टेक एन अडल्ट विद यू इफ़ यू आर टेकिंग योर पेट डॉग फॉर अ वॉक, यू हैव अ पेट डॉग, आपने घर पे आपके पास डॉग है, कैट है, तो क्या करना चाहिए, टेक एन अडल्ट विद यू, अपने साथ किसी बड़े को लेके जाना चाहिए। इफ़ यू आर टेकिंग योर पेट डॉग फॉर अ वॉक, अगर आप वॉक पे अपने डॉग को लेके जाते हैं तो किसी बड़े को टेक एन अडल्ट विद यू। ही माइट पुल यू एंड मेक यू फॉल, अदरवाइज अगर आप अकेले जाएंगे तो क्या होगा, डॉग माइट पुल यू एंड यू में फॉल, आप गिर सकते हैं। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर आफ्टर टचिंग अ डॉग, डॉग को टच करते हैं तो क्या करना चाहिए, हमेशा अपने हैंड्स को सोप से वाटर से प्रॉपर वॉश करना चाहिए। इट में कैरी जर्म्स दैट कैन मेक यू फॉल इल, क्योंकि हमारे हैंड्स में क्या होते हैं, जर्म्स हो जाते हैं और उससे हम बीमार हो सकते हैं, वी कैन फॉल इल। इन अ जू, जब हम जू जाते हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। डू नॉट अटेम्प्ट टू टच द एनिमल्स, हमें एनिमल्स को टच करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डू नॉट फीड द एनिमल्स, एनिमल्स को फीड नहीं करना चाहिए, कुछ भी हमें नहीं खिलाना चाहिए। फॉलो द रूल्स ऑफ द जू, और जू के जो भी जितने भी रूल्स होते हैं, उनकी सोसाइटी के टूवर्ड्स जो रूल्स होते हैं उन्हें हमें फॉलो करने चाहिए। सेफ्टी रूल्स वाइल ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, जब हम व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या सेफ्टी रूल्स होने चाहिए। देयर आर फ्यू सेफ्टी रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड वाइल ट्रैवलिंग इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज अ कार और इन अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सच एज अ कार और इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज बस, ट्रेन और एन एयरप्लेन। कुछ सेफ्टी रूल्स है जो फॉलो करने चाहिए अगर हम प्राइवेट व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं या चाहे हम पब्लिक व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं। वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार, जब भी कार में ट्रैवल करते हैं तो ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट, वी शुड वेयर अ सीट बेल्ट टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। डू नॉट प्ले लाउड म्यूजिक इनसाइड द कार, दिस में डिस्टर्ब द पर्सन हु इज ड्राइविंग, लाउड म्यूजिक प्ले नहीं करना चाहिए कार में, क्यों, क्योंकि वो जो भी पर्सन ड्राइव कर रहा है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। एनकरेज द ड्राइवर टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, इफ द ड्राइवर इज नॉट फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, लेकिन आप एनकरेज करो कि वो ट्रैफिक रूल्स को ही फॉलो करे। लाइक अगर ट्रैफिक लाइट रेड हो गई है तो वो रुक जाए, ग्रीन हो गई है तो वही अपने व्हीकल को मूव करे। सो ड्राइवर को एनकरेज करें टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। डू नॉट पुट योर हैंड आउटसाइड द विंडो ऑफ द कार और अदर ट्रांसपोर्ट, किसी भी ट्रांसपोर्ट, नॉट ओनली इन कार, बस, ट्रेन, अपने हैंड को बाहर नहीं निकालना चाहिए। डू नॉट पुट योर हैंड आउटसाइड, विंडो से बाहर नहीं निकालना चाहिए। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर बाय टॉकिंग टू हिम कंटिन्यूसली और आस्किंग हिम क्वेश्चन, ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, उससे कंटिन्यूसली बातें नहीं करनी चाहिए, कंटिन्यूसली क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए। ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट, ड्राइवर कौन होता है, द पर्सन हु इज ड्राइविंग द व्हीकल, जो भी गाड़ी चला रहा होता है ड्राइवर, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। Never get up and move around in the bus. If the brakes are applied suddenly, you will fall. देखो बस में अपनी एक प्रॉपर पेस पे ही हमें बैठना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस में हम रोम कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नो, ना उठना चाहिए, मूव अराउंड नहीं करना चाहिए। क्यों, अगर ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगाए, अगर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक सडनली अप्लाई किए तो यू में फॉल, आप गिर सकते हैं बस में। ऑलवेज लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द बस अटेंडेंट, बस ड्राइवर के साथ बस अटेंडेंट भी होते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने चाहिए। ऑफर सीट्स टू द एल्डरली और सिक पीपल इन द बस और ट्रेन, अगर आप बस में हैं या ट्रेन में हैं और आप सीट पे बैठे हैं, if आप देखते हैं अपने आसपास आपके पास में कोई एल्डरली या कोई सिक पीपल है जिन्हें सीट नहीं मिली है, जो नहीं बैठे हैं, जो खड़े हैं, तो ऑफर योर सीट, आपको उन्हें सीट्स ऑफर करनी चाहिए क्योंकि वो आपसे बड़े होते हैं और बीमार भी होते हैं। Do not push others while entering or leaving a public transport, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एंटर कर रहे हैं या बाहर आ रहे हैं, आप बस में एंटर करते हैं, बस से बाहर आते हैं, तो किसी को पुश नहीं करना चाहिए। ऑलवेज वॉक इन अ क्यू, लाइन में हमें एंटर करना चाहिए और लाइन से ही हमें बाहर आना चाहिए। स्टैंड इन अ क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न टू एंटर, मैंने बताया लाइन में खड़ा होना चाहिए, अपने टर्न का वेट करना चाहिए एंटर करने के लिए। रीड ऑल द सिग्नल्स केयरफुली, किसी भी ट्रांसपोर्ट में किसी भी व्हीकल में है तो उसके सिग्नल्स को प्रॉपरली रीड करना चाहिए। Internet safety, if you are using internet there must also be safety. Remember that you are not allowed to use social media such as Facebook until you are 14 years of age. You strictly are not allowed to use any social networking sites like Facebook, Instagram, WhatsApp. आपको ये सब चीज़ें नहीं चलानी चाहिए until you attain the age of 14-15 years. जब तक आप 14-15 years के नहीं हो जाते, इन सब साइट्स को अलाउड आपको नहीं होना चाहिए, आपको नहीं चलानी चाहिए। Do not give any kind of personal information on the internet. इंटरनेट पे किसी भी तरह की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, लाइक आपका एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर, आपके पेरेंट्स की डिटेल्स हमें शेयर नहीं करनी चाहिए।
डू नॉट एक्सेप्ट ऑनलाइन रिक्वेस्ट ऑफ स्ट्रेंजर्स, किसी भी स्ट्रेंजर की ऑनलाइन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे जानते हैं तो ही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अदरवाइज डिलीट कर देना चाहिए। इफ एनी मैसेज ऑन द इंटरनेट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, इमीडिएटली इन्फॉर्म योर पेरेंट। अगर आपको लगता है कि इनबॉक्स में आपके मैसेज, आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कोई मैसेज अच्छा नहीं आया, आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है और मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल, आपको कंफर्टेबल नहीं लगता वो, तो अपने पेरेंट्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए। Discuss and mutually decide with your parents about the time of the day that you can be online and appropriate sites to visit. अपने पेरेंट्स से म्यूचुअली डिस्कस करना चाहिए कि आप किस टाइम पे और आपको कितना टाइम आप सोशल नेटवर्किंग को देना होता है आपको, एंड अप्रोप्रिएट साइट्स टू विजिट, आपको कौन सी साइट्स विजिट करनी चाहिए। यू शुड क्लियरली डिस्कस एंड म्यूचुअली डिसाइड विद योर पेरेंट्स। Do not share your password with anyone other than your parent. आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स के पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करने चाहिए अदर दैन योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए। Check with your parents before downloading or installing any software that could possibly hurt your computer. अगर आप कुछ भी कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं किसी सॉफ्टवेयर को, या डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो हमेशा क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स से सजेस्ट करना चाहिए, पेरेंट्स का सजेशन लेना चाहिए, पेरेंट्स को पूछना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए, उसके बाद ही हमें किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहिए। बट इट्स बेटर टू अवॉइड सोशल नेटवर्किंग साइट्स एट द एज ऑफ 14 और 15। फर्स्ट एड, नाउ फर्स्ट एड, व्हाट इज फर्स्ट एड? इफ यू गेट हर्ट, आपका एक्सीडेंट हुआ, आप केयरफुल नहीं रहे, केयरलेस रहे और आपका एक्सीडेंट हुआ एंड यू गेट हर्ट, आप हर्ट हुए। अब हर्ट होने के बाद क्या होता है? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ पर्सन हु गेट्स इंजर्ड और फॉल्स इल। देखो, जो इमीडिएट हेल्प हम उस पर्सन को प्रोवाइड करते हैं, जो भी पर्सन इंजर्ड हुआ या बीमार हुआ, तो जो इमीडिएटली हम हेल्प करते हैं उसी इमीडिएट हेल्प को हम कहते हैं फर्स्ट एड। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द पर्सन हु गेट्स इंजर्ड, जो इंजर्ड होता है या बीमार हो जाता है, उसको सडनली उस टाइम पे जो हेल्प प्रोवाइड करना होता है फर्स्ट एड। इट कैन बी गिवन बिफोर प्रॉपर मेडिकल हेल्प अराइव्स, जब प्रॉपर मेडिकल हेल्प नहीं आती उसके पहले उसको वो दे दिया जाता है। इट कैन सेव अ पर्सन्स लाइफ, पर्सन्स की लाइफ को सेव करता है। अगर आप मेडिकल हेल्प के लिए वेट करोगे तो क्या होगा, बहुत देर हो जाती है, सो हमें इमीडिएट हेल्प देनी चाहिए। नेवर ट्राई टू गिव फर्स्ट एड टू एनीबडी इफ यू हैव नॉट लर्न हाउ टू डू। अगर आपको नहीं पता कि फर्स्ट एड कैसे यूज़ करी जाती है तो आपको ट्राई नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। If someone gets injured or falls ill, call an adult immediately. Whether in school, whether in park, whether in home, whether at home, अगर कोई भी गिर गया है, इंजर्ड हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए? कॉल एन अडल्ट, हमसे बड़े को, पेरेंट्स को इमीडिएटली, टीचर्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए। एज आई टोल्ड यू, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई गिर जाता है, कोई बीमार होता है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अडल्ट को इन्फॉर्म करना चाहिए। मेक द पर्सन सिट कंफर्टेबली और लाई डाउन, ट्राई टू काम हिम और हर डाउन। देखो, अगर कोई पर्सन इंजर्ड हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए? पर्सन को कंफर्टेबली बिठाना चाहिए, उसके आसपास क्राउड नहीं करना चाहिए, हमें उसे काम रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो पैनिक ना हो। डू नॉट लेट पीपल क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। आई टोल्ड यू, इंजर्ड पर्सन के आसपास क्राउड नहीं होना चाहिए। क्यों? ताकि उसको प्रॉपर एयर मिले, प्रॉपर ब्रीदिंग मिले। Do not move a person who is seriously injured. He may have broken bones that could be further damaged if you move him. अगर who is seriously injured, कोई पर्सन जिसको बहुत सीरियसली इंजर्ड हुआ है, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा इंजरीज आई है, तो हमें उसे मूव नहीं करना चाहिए। क्यों? मूव करने से उसकी और ज़्यादा बोन्स ब्रेक हो सकती है। इफ़ यू मूव हिम, अगर आप उसे मूव करते तो। फर्स्ट एड फॉर माइनर कट्स एंड बाउंड्स, अगर माइनर छोटे से कट्स हैं या छोटी सी चोट है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वॉश स्मॉल कट्स और वाउंड विथ कोल्ड वाटर, कूल वाटर, ठंडे पानी से धोना चाहिए उस कट को जहाँ भी आपका कट आया है बॉडी में। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम, इमीडिएटली वॉश करने के बाद एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम को यूज़ करना चाहिए। इट किल्स जर्म्स। इफ देयर इज ब्लीडिंग, अ प्रॉपरली टाइट बैंडेज विल स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड। अगर आपके कट में या वाउंड में ब्लीडिंग होती है तो हमें क्या करना चाहिए? अब प्रॉपरली टाइट बैंडेज को प्रॉपरली टाई अप करना चाहिए टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड का फ्लो ना हो। डू नॉट अलाउ डर्ट और फ्लाइज टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द वाउंड एज दे माइट कॉज इन्फेक्शन। देखो, इफ़ यू गेट अ कट और वाउंड, अगर आपको कट या वाउंड होता है तो क्या करना चाहिए? हमें फ्लाइज या डर्ट को हमारे उस वाउंड के आसपास नहीं आने देना चाहिए। क्यों? बिकॉज दे माइट कॉज इन्फेक्शन, हमारे उस वाउंड पे या उस एरिया पे इन्फेक्शन हो सकता है, बॉडी के उस पार्ट पे इन्फेक्शन हो सकता है। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, देखो वी हैव स्टडीड फर्स्ट एड फॉर माइनर कट्स एंड वाउंड। माइनर कट होते हैं, वाउंड्स होते हैं, तो हमें सबसे पहले कूल वाटर से उस एरिया को वॉश करना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन यूज़ करना चाहिए, क्रीम यूज़ करना चाहिए। अगर ब्लीडिंग है तो प्रॉपरली टाई करना चाहिए बैंडेज को टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड, एंड डू नॉट अलाउ डर्ट और फ्लाइज टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द वाउंड। ठीक है। नाउ फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, इफ़ यू गेट बर्न, अगर आपको बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं आप किसी चीज़ से, तो हमें क्या करना चाहिए? माइनर बर्न शुड बी वॉश विद कूल वाटर। छोटा सा बर्न है तो सबसे पहले क्या करें? कूल वाटर से वॉश करें, ठंडे पानी से। Then again an antiseptic lotion should always be applied on the burn, हमेशा कुछ ना कुछ अप्लाई करना चाहिए एंटीसेप्टिक लोशन।
इन केस ऑफ सीरियस बर्न्स कॉल द डॉक्टर इमीजिएटली, और बहुत ज़्यादा बर्न हो गया, लाइक बहुत सीरियस बर्न हो गया कोई भी पार्ट बॉडी का, तो इमीजिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डू नॉट अप्लाई आइस पैक ऑन बर्न, और जब भी आप किसी भी बॉडी पार्ट आपका जल जाता है, बर्न हो जाते हैं, तो आइस पैक अप्लाई नहीं करना चाहिए, एज इट कैन कॉज फ्रस्ट बाइट एंड डैमेज द स्किन। फ्रस्ट बाइट कॉज कर सकता है, स्किन को डैमेज कर सकता है, सो डू नॉट अप्लाई आइस पैक ऑन अ बर्न। फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट बाइट्स, अगर किसी इंसेक्ट ने आपको बाइट कर लिया तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? Insect bites can be treated by applying ice on the sting or by pouring cold water over it। देखो इंसेक्ट बाइट कैसे ट्रीट हो सकता है, कैसे ट्रीटेड कर सकते हैं हम उन्हें? बाय अप्लाइंग आइस, उस पर आइस अप्लाई करना चाहिए, रब करना चाहिए आइस को, अप्लाइंग आइस ऑन द स्टिंग, और बाय पोरिंग कोल्ड वाटर ओवर इट, उस पर क्या करना चाहिए? कोल्ड वाटर पोर करना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ कैलामाइन लोशन विल ऑल्सो सूद द अफेक्टेड एरिया, कैलामाइन लोशन यूज करना चाहिए जिससे वो अफेक्टेड एरिया थोड़ा ठीक होगा। सम पीपल आर एलर्जिक टू इंसेक्ट स्टिंग, इंसेक्ट स्टिंग के कुछ पीपल एलर्जिक होते हैं। दे डेवलप रैश दैट कैन गेट सीरियस, क्या हो जाता है जब इंसेक्ट ने उन्हें बाइट किया, इंसेक्ट स्टिंग हुए, तो उनकी स्किन क्या हो जाती है? रैशेस हो जाते हैं, रेड रैशेस हो जाते हैं। सच पीपल मस्ट बी टेकन टू अ डॉक्टर इमीडिएटली। ऐसे लोगों को अगर आपने देखा कि आइस अप्लाई करने के बाद भी, कोल्ड वाटर पो करने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, कैलामाइन लोशन लगाने के बाद भी अफेक्टेड एरिया में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो वी शुड ऑलवेज टेक टू दैट पर्सन टू अ डॉक्टर। फर्स्ट एड व्हेन समवन फेंट्स, जब किसी को चक्कर आ जाते हैं तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? व्हेन समवन फेंट्स, मेक द पर्सन लाई डाउन, उस पर्सन को लेटाना चाहिए आराम से। द हेड शुड बी लोअर देन द बॉडी, हेड कैसा होना चाहिए? शुड बी लोअर, लाइक इन दिस पोजिशन, हेड शुड बी लोअर देन द बॉडी, सो डैट द ब्रेन गेट्स एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन। देखो ब्रेन को क्या मिलेगा जब हम उसे ऐसे लाई डाउन करेंगे, तो ब्रेन को क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई होगा और प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी ब्रेन को, सो डैट द पर्सन विल अगेन वेकअप। देयर शुड बी अ गुड सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, डू नॉट क्राउड अराउंड द पर्सन हु हैज फेंटेड। देखो क्या होना चाहिए ना? फ्रेश सप्लाई और गुड सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, जो भी पर्सन फेंट हुआ है उसके आसपास क्राउड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट होती है। सो डू नॉट क्राउड अराउंड द पर्सन हु हैज फेंटेड। कॉल फॉर अ डॉक्टर द पर्सन डज नॉट रिकवर हिज और हर कॉन्शियसनेस सून। अगर इमीजिएटली वो पर्सन 5 मिनट्स में कॉन्शियस नहीं होता, वो अनकॉन्शियस ही रहता है, वो कॉन्शियस नहीं होता, रिकवर नहीं होता, तो क्या करना चाहिए? इमीजिएटली वी शुड कॉल अ डॉक्टर। दीज ऑल आर द सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो। थैंक यू।